بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حکومت نے عوام پر ایک بار پھر سے بجلی گرا دی ہے۔ بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 95 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ بھی بنیادی ٹیرف 18 پیسے بڑھایا گیا۔ صارفین پر 200 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ 3 ماہ کے دوران فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بھی 15 ارب 75 کروڑ اضافی وصول کیے۔ بجلی استعمال کیجئے لیکن کفایت شاری کے ساتھ، کیونکہ حکومت نے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 1 روپیہ 95 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے۔ گزشتہ ماہ بنیادی ٹیرف 18 پیسے بڑھایا گیا تھا۔ یوں صرف 2 ماہ میں بجلی 2 روپے 13 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ صارفین پر 200 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ لوڈ شیڈنگ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اوپر سے انہوں نے یہ 1 روپیہ اور 95 پیسے جو فی یونٹ کا جو بوجھ ڈال دیا ہے، یہ تو سب کے لیے پریشانی ہے، میرے اکیلے کے لیے بلکہ سب کے لیے پریشانی ہے۔ بجلی اور مہنگی ہے، ریڈی تو کم کو نہیں ہے گا، بالکل سردیاں بازار بیٹھے ہوئے ہیں، کدھر سے لے کے کھائیں گے؟ غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کرائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ گیس کا بھی بل بدے گا، اس کا بھی بل بدے گا، وہ مسئلہ تو خراب ہوگا نا غریب کے لیے۔ دوسری جانب فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 ماہ کے دوران 2 روپے 17 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ ماہ ستمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں 1 روپے 11 پیسے کا اضافہ ہوا۔ اکتوبر اور نومبر میں 1 روپیہ 6 پیسے فی یونٹ بڑھایا گیا۔ مجموعی طور پر فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین کو 15 ارب 75 کروڑ روپے کی اضافی ادائیگی کرنا ہوگی۔ شاہد سپرا، سٹی 42، لاہور۔ مہنگائی کی سونامی میں ہچکیاں لیتے عوام کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کا طوفان، سرخ مرچ، اچار، مشروبات، مسالہ جات، شیمپو اور واشنگ پاؤڈر کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ کمر توڑ مہنگائی نے غریب کی زندگی مزید مشکل کر دی۔ سستی اشیاء کے حصول کے لیے شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کیا تو حکومت نے وہاں بھی مہنگائی کا بم گرا دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 100 گرام مرچ پاؤڈر کی قیمت 50 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ مختلف برانڈز کے اچار کی قیمت 60 روپے بڑھ گئی۔ مشروبات کی بوتل میں 30 روپے اضافہ ہو گیا۔ مسالہ جات کی قیمت 40 روپے بڑھا دی گئی۔ شیمپو کی بوتل 11 روپے اور واشنگ پاؤڈر کا پیکٹ 5 روپے مہنگا ہو گیا۔ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی ایک تھا جدھر مناسب ریٹ تھے، ابھی اس کا بھی بڑھ گیا، تو پھر تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے نا۔ حکومت کو چاہیے نا کہ اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ ایڈی چنگی چینی ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਬਰੀਕ ਚੀਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 10-15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ, ਘਿਓ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੱਧ ਗਈ। 500-600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ؟ یوٹیلیٹی سٹور سے سستا آٹا، چینی اور گھی پہلے ہی ناپید ہے۔ دستیاب اشیاء بھی مہنگی کر کے عوام کی مشکلات بڑھا دی گئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹور کی سستی اشیاء کو مہنگا کر کر عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ دھند کی صورتحال کی بات کریں تو سردی کی لہر برقرار، دھند بھی چلی آئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو دھند کے باعث اسی صورتحال کے پیش نظر بند کیا گیا ہے۔ دھند کے باعث شہری سفر سے گریز کریں، ایڈیشنل IGPHP کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ شاہزیب شہزاد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہزیب، کیا حد نگاہ ہے اور کیا دھند کی صورتحال ہے؟ بالکل، شہر لاہور میں دھند نے کئی روز سے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے آمد و رفت کا سلسلہ برے طریقے سے متاثر ہو کر رہ گیا۔ آج بھی موٹر وے پولیس کی جانب سے لاہور سے جانے والی سیالکوٹ موٹر وے کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ ترجمان موٹر وے کے مطابق صرف 50 میٹر تک حد نگاہ محدود ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی موسم ابرآلود ہوگا اور دھند اپنے ڈیرے برقرار رکھے گی۔ جبکہ ترجمان موٹر وے کی جانب سے یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور جو شہری لاہور اور دیگر علاقوں میں کہیں بھی سفر کر رہے ہیں وہ موٹر وے ہم سفر ایپ اور ہیلپ لائن 130 سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جو شہری اندرون شہر کے اندر سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے کہ وہ پولیس کی راستہ ایپ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جبکہ ابھی بھی موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ اگر دھند نے اپنا زور دکھانے کی کوشش کی تو موٹر وے M2 اور موٹر وے 3 کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے شاہزیب، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں 254 اساتذہ اور طلباء کے کورونا ٹیسٹ، تمام کی رپورٹس نیگیٹو آ چکی ہیں۔ لاہور میں سرکاری اور نجی اسکولز میں 254 اساتذہ و طلباء کے کورونا ٹیسٹ لیے گئے۔ کسی ایک ٹیچر میں بھی کورونا کی تشخیص نہ ہو سکی۔ مذکورہ اساتذہ کے ٹیسٹ 5 اسکولوں سے لیے گئے ہیں۔ سی ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور پرویز اختر خان کا کہنا ہے کہ لاہور کے سرکاری اسکولز میں کورونا وائرس کی سیمپلنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کی سیمپلنگ کر رہی ہیں۔
शहर को बदतरीन आलूदा फ़ज़ा से निजात दिलाने के लिए महकमा माहौलियात की कारकर्दगी नाअहली की नज़र हो गई। मुख्तस 6 अरब बजट में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से फंड दूसरे मंसूबों को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। लाहौर की फिजा को साफ करने के बेशतर मंसूबे 6 माह बाद भी अधूरे के अधूरे हैं। रवा माली साल में हुकूमत पंजाब ने शहर को फ़ज़ाई आलूदगी से बचाने के लिए 6 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के फंड्स महकमे माहौलियात के लिए मुख्तस किए थे, लेकिन PND बोर्ड के इस्तेमाल शुदा फंड्स पर जारी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि महकमे माहौलियात को लाहौर के 6 अरब रुपए में से पहले 6 माह में 15 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन ताहाल एक पाई भी खर्च नहीं की जा सकी, जिस पर अब PND बोर्ड के ज़राए ने बताया है कि फंड खर्च न करने वाले मंसूबों का बजट वापस लिया जा रहा है। हुकूमत ने ये फंड दीगर मंसूबों को मुंतकिल करने का फैसला किया है। महकमा माहौलियात से लाहौर के लिए मुख्तस 6 अरब रुपए के फंड वापस ले लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक फंड्स दीगर तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। शहर में आलूदगी से पाक फिजा के लिए यूनिट और ग्रीन बिल्डिंग की तामीर समेत दीगर मंसूबों की तकमील होना थी। फॉरेंसिक एजेंसी में बनाई गई नई जदीद लेबॉर्ट्री की तामीराती लागत में 34 करोड़ का इजाफा हुआ है। लागत 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख तक जा पहुंची है। माले मुफ्त दिले बेरहम। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में बनने वाली ट्रेनिंग लेबॉर्ट्री की लागत में इजाफा, मंसूबे की लागत में 34 करोड़ का इजाफा हुआ। IDP ने लागत में इजाफे पर तरमीमी प्लानिंग कमीशन मंजूरी के लिए तरक्याती बोर्ड को अरसाल कर दिया। इब्तदाई तौर पर मंसूबे के लिए 1 अरब 32 करोड़ 20 लाख की मंजूरी दी गई। तरमीमी प्लान कमीशन में 34 करोड़ के इजाफे के बाद लागत 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख तक जा पहुंची, जिसमें यूटिलिटी कनेक्शन की मद में 2 करोड़ का इजाफा हुआ। स्ट्रक्चर वर्किंग में 5 करोड़ 60 लाख का इजाफा हुआ। आर्टिकल्चर विंग में 1 करोड़ 60 लाख का इजाफा हुआ। ट्रैफिक मसाइल की बात करें तो अल्लाह गोल चक्कर पर ट्रैफिक के अज़्दहाम पर काबू पाने के हवाले से फार्मूला तैयार कर लिया गया है। LDA ने 2.5 करोड़ की लागत से ख़याबानी फिरदौसी को अल्लाह गोल चक्कर से सिग्नल फ्री करने का डिज़ाइन तैयार कर लिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अल्लाह गोल चक्कर पर ग्रीन एरिया को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ दी है। ख़याबान फिरदौसी को अल्लाह गोल चक्कर से सीधा गुजारने की तजवीज़ दी गई है। डिज़ाइन के मुताबिक अल्लाह गोल चक्कर के दोनों तरफ जदीद यू टर्न तैयार किए जाएंगे। ख़याबान फिरदौसी पर ट्रैफिक को सीधा जबकि मुड़ने वालों को जदीद यू टर्न मैसर होंगे। ख़याबान फिरदौसी पर ट्रैफिक को सिग्नल फ्री मूवमेंट मैसर होगी। अल्लाह गोल चक्कर पर पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका था। इसके हल के लिए DG LDA अहमद अजीज तार ने इंजीनियरिंग विंग को ठोस हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की थी। जबकि दाता दरबार लाहौर समेत पंजाब के 20 बड़े दरबारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक से वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर पीर सईद उल हसन गिलानी की मुलाकात में फैसला किया गया। वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर की महकमा तवानाई आमद पर डॉक्टर अख्तर मलिक और सेक्रेटरी तवानाई आमिर जान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर की महकमे तवानाई आमद डॉक्टर अख्तर मलिक और सेक्रेटरी तवानाई आमिर जान ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर डॉक्टर अख्तर मलिक ने दाता दरबार लाहौर को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का ऐलान किया। दरबार बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, हज़रत सुल्तान बाहू, शाह शम्स समेत दीगर दरबारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। सेक्रेटरी तवानाई ने MD पैका अदनान मुदस्सिर को जल्द अज जल्द दरबारों का एनर्जी ऑडिट करने की हिदायत की। वज़ीर तवानाई पंजाब के मुताबिक पंजाब भर के सरकारी इदारों को सोलर पर मुंतकिल कर रहे हैं। पंजाब की 40 से ज़ायद जामियात और 15,000 स्कूलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली तेजी से जारी है। अब तक 10,000 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। पीर सईद उल हसन गिलानी ने कहा कि बादशाही मस्जिद के शमसी तवानाई पर मुंतकिली के ऐलान पर अख्तर मलिक का बहुत मशकूर हूँ। अख्तर मलिक स्कूलों, जामियात और अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके नेकी का काम कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से कब्जे में ली गई करोड़ों रुपए की हज़ारों गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स वापस मालिकान तक पहुंचाने का फैसला किया गया है। तमाम RPOs और DPOs थानों में खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के नंबर चोरी शुदा गाड़ियों की FIR से क्रॉस चेक करें। थानों में खड़ी करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स खराब और नाकारा हो रही हैं। IC पंजाब ने लावारिस या बगैर कागजात के कब्जे में ली जाने वाली गाड़ियों का लाहौर समेत पंजाब भर में थानों से रिकॉर्ड चेक करने का हुक्म दे दिया। तमाम RPOs और DPOs थानों में खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के नंबर चोरी शुदा गाड़ियों की FIR से क्रॉस चेक करें। थानों में खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स का तमाम रिकॉर्ड एक्साइज से चेक किया जाए। जो गाड़ी या मोटरसाइकिल मालिकान पुलिस और एक्साइज रिकॉर्ड से नहीं मिलते, उनका रिकॉर्ड कंपनी को भेजा जाए। गाड़ी या मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी से खरीदार का रिकॉर्ड हासिल करके मालिक तक पहुंचाया जाए। जिन गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड मिल जाए, उनके मालिकान को कवायद के साथ बुलाकर कानूनी तरीके से गाड़ी हवाले की जाए।
शेख ज़ैद हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस बी और सी के PCR टेस्ट की सहूलत नापैद हो चुकी है। जिगर के अमराज में मुब्तला मरीज टेस्टों के लिए प्राइवेट लेबॉर्ट्री से रुजू करने पर मजबूर हो गए हैं। शेख ज़ैद अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जुही की वजह से हेपेटाइटिस बी और सी के PCR टेस्ट की सहूलत नापीद हो गई। ज़राए के मुताबिक पैथोलॉजी लैब में PCR किट्स में असर न होने की वजह से टेस्ट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जिगर के अमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज मुतासिर हो रहा है। शेख ज़ैद अस्पताल के पैथोलॉजी लैब में टेस्टों की सहूलत में असर न होने पर मरीज प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से रुजू करने पर मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने ड्राइंग, अरबी और फिजिकल टीचर्स की सैकड़ों असामियां खत्म कर दी। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा असामियाँ ख़त्म होने से स्कूलों में तलबा को ड्राइंग, अरबी और फिजिकल के माहिर असाज़ा दस्तियाब नहीं होंगे। असामियाँ ख़त्म होने से मज़कूरा असामियों पर असाज़ा की भर्ती नहीं हो सकेगी। मज़कूरा असामियों को BST, EST और SST में तब्दील किया गया है। असामियाँ तब्दील होने से आइंदा असाज़ा की भर्ती ग्रेड 14, 15 और 16 में की जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक साइंस को फ़रोग देने के लिए कुछ सीटों को तब्दील किया गया है। उनका कहना था कि आइंदा इन साइंस टीचर्स को रखा जाएगा जो ड्राइंग, अरबी और फिजिकल एजुकेशन में भी महारत रखते होंगे, ताकि स्कूलों में मुतलका टीचर्स की कमी का सामना न करना पड़े। सीवरेज मसाइल की बात करें तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सीवरेज सिस्टम जवाबदेह किया है। आमिर टाउन, न्याजी चौक और रावी रोड पर गटर उबल पड़े। वासा के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज और मसाइल के फौरी हल का मुतालबा कर दिया है। आमिर टाउन और न्याजी चौक या फिर हसन शाह चौक, रावी रोड, खराब सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। आमिर टाउन इमरान कॉलोनी में निकासी आप का सिस्टम खराब होने पर शहरियों ने एहतजाज किया। कहते हैं मस्जिद के सामने भी सीवरेज का पानी जमा है, गुजरने तक का रास्ता नहीं। ना मदीना दे हथ बना सकते हो, ये तो बेहतर स्विच छड्ड के पासे हो जाओ, असीं खुद इंतजाम कर लेने आ। जे तुहाडे कोल सफाई नहीं हुंदी ते सानू ते ओह काम ते असीं सफाई करके देने आ। न्याजी चौक पर भी गटर उबलना शुरू हो गए, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। वासा की कारकर्दगी से नाला शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। और कारोबार साढ़े तबाह होए पे ने, दुकान साढ़े फर्क हो गई, दुकाना सारियां खा कोई नहीं, पानी 24 घंटे च असीं बहुत परेशान, असीं दफ्तर जा के थक गए, कोई गल नहीं सुनता साडी। गिलानी पार्क, हसन शाह चौक, रावी रोड के मकीनों ने भी खराब सीवरेज सिस्टम की दुहाई दी। इस गंदगी की वजह से इतने परेशान हैं कि बच्चे, औरतें, बूढ़े आदमी यहाँ से गुजर नहीं सकते। और आप ये देखें, ये गंद, यहाँ इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहते। परेशान हाल शहरियों का कहना है कि दफातर के चक्कर काटने के बावजूद शिकायत का अजाला नहीं किया जा रहा। सीवरेज सिस्टम बैठ गया, गलियों में पानी जमा होने से गुजारना महाल हो गया। अहले इलाका कहते हैं अपोजिशन में वादे करने वाले हुकूमत में आकर उन्हें भूल गए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फरहान यामीन, शरीफ 42। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना हाउसिंग केस में शहबाज शरीफ को 26 जनवरी को तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ को बाकायदा समन भिजवा दिए गए हैं। एहतसाब अदालत में आशियाना केस की समाअत के दौरान अदालत ने शहबाज शरीफ को 26 जनवरी को तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ की हाजिरी माफ़ करने की और वजूहात थीं, लेकिन अब शहबाज शरीफ की कोई मसरूफियत नहीं, वो गिरफ्तार हैं और दूसरी अदालत में पेश होने के लिए यहाँ आते हैं। इस्तदा है कि उनको इस अदालत में भी पेश होने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए शहबाज शरीफ को 26 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत से शहबाज शरीफ को बाकायदा समन भिजवा दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कल अदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी है। PMC एक्ट 2020 कानूनी करार। जस्टिस जवाद हसन ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फीसों में खुली छूट देने से इनकार कर दिया। इजाफी वसूली गैर कानूनी करार, जबकि कॉलेजेस को टेस्ट के बगैर MD कैट में दाखिला देने का इख्तियार नहीं। तहरीरी तौर पर फैसला जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 और रेगुलेशन को आईनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने अपना मेडिकल कॉलेज की जानिब से दायर दरख्वास्त पर 20 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 और MD कैट का अदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मेडिकल कॉलेज के लिए रेगुलेटर का किरदार अदा करता है। किसी प्राइवेट कॉलेज को फीसों की वसूली के मामले पर खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इजाफी फीस वसूल नहीं कर सकते। कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज MD कैट टेस्ट के बगैर दाखिला करने का मजाज नहीं। तहरीरी फैसले के मुताबिक MD कैट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सेक्शन 18 के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। MD कैट के मुताबिक तालिबे इल्म डॉक्टर नहीं बन सकता। दरख्वास्त गुजार मेडिकल कॉलेज की जानिब से सलमान असलम भट्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने दलाइल देते हुए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 रेगुलेशन और MD कैट के इकदाम को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की थी।
सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की आउट ऑफ टर्न तरक्कियों के मामले पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साबिक आईजीज पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देकर 2 हफ्तों में सिफारिशात तलब कर ली हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। मलिक सरवर रवान, उमर विक, मलिक अवैस समेत दीगर 32 पुलिस अफसरों की अपीलों पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार पुलिस अफसरों की जानिब से दायर अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद तरक्कियाँ दी गईं। अदालतों ने भी दरख्वास्त गुजारों को दी गई तरक्कियों की तौसीक की। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आउट ऑफ टर्न तरक्कियों के फैसले के ज़ुमरे में हम नहीं आते। होम सेक्रेटरी भी हमारी तरक्कियों को जायज़ करार दे चुके। सुप्रीम कोर्ट के आउट ऑफ टर्न तरक्की के फैसले की दरख्वास्त तशरीह नहीं की गई। हमारी तरक्कियां वापस लेकर तंज़लिया कर दी गईं। दरख्वास्त गुजार पुलिस अफसरों की जानिब से इस्तदा की गई कि उनको दी गई तरक्कियां बहाल की जाएं। मजीद इस्तदा की गई कि तरक्कियां वापस लेने पर साबिक IG मुश्ताक अहमद समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वकला के दलाइल सुनने के बाद साबिक IG पुलिस हबीबुर रहमान, तारिक खोसा, नासिर खान दुरानी समेत 6 साबिक IGs पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। उन्हें 2 हफ्तों में अपनी सिफारिशात पेश करने की हिदायत की है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्मनी की तरक्की के लिए ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान में जर्मन मसनूआत को बहुत पसंद किया जाता है। दोनों ममालिक के दरमियान अवामी रवाबित मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन और कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर डॉक्टर बर्नहार्ड स्टीफन शेलिंगहैग ने फर्स्ट सेक्रेटरी क्रिश्चियन बॉचर के हमरा उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। जर्मन सफ़ीर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन ने जर्मनी में कोरोना में मुब्तला पाकिस्तानियों को आसान तरीके से डील करने पर जर्मन हुकूमत का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। शहर में होने वाले अहम इजलासों और दौरों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर से ताजरों के वफ्द की मुलाकात। बाजारों, मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स में सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ का तबादला किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां सलाम इकबाल ने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। MPA चौधरी अमीन और मशीर ओन चौधरी भी उनके हमरा थे। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद की चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मलिक अमजद अली नून से मुलाकात सफाई के इंतजाम के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन एपनमा पंजाब अब्दुल रहीम नासिर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को मोहम्मद अमीन से मुलाकात। CEO लेस्को ने चेयरमैन एपनमा पंजाब बिजली की तातुल फरामी की यकीन दहानी कराई। DG स्पोर्ट्स पंजाब ने वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप जीतने वाली टीम की कारकर्दगी को सराहा। कोच और खिलाड़ियों को सवीनियर भी दिए गए। वजीर लाइव स्टॉक सरदार हसनैन रेशिक ने लाइव स्टॉक ब्रीडिंग और डेयरी इंडस्ट्री को मजीद फरोग देने पर जोर दिया है। रिपब्लिक ऑफ माली के सफीर का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मुस्बा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान से मुलाकात की। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सैयद यावर बुखारी की सुंदस फाउंडेशन आमद थैलेसीमिया के मरीजों को तोहफे पेश किए। जर्मन सफ़ीर ने पाक जर्मन दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगा दिया। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे पर पाकिस्तानी खवातीन की सलाहियतों का एहतराफ भी किया। बिजनेस में खवातीन की अमली शमूलियत पर उन्होंने जोर दिया। जर्मन स्पीर बर्न हार्टशलाग हुक ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। मेहमान सफीर ने वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। वुमेन चैम्बर की बानी सदर डॉक्टर शहला जवेद अकरम ने जर्मन स्पीर को बताया कि वुमेन चैम्बर ने अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी खवातीन की हौसला अफजाई की जाती है। जर्मन स्पीर ने वुमेन चैम्बर के इकदाम को सराहा और कहा कि खवातीन को कारोबार में मुसावी मौके दिए जाएं तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। जर्मन सफीर को लाहौर के रवायती खाने पेश किए गए। उन्होंने फ्रूट चाट बहुत शौक से खाई। जर्मन सफीर ने मुल्तान रोड पर जर्मन कंपनी MAN ग्रुप का भी दौरा किया। जर्मन सफीर का कहना था कि पाकिस्तान और जर्मनी मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। MAN ग्रुप बाहमी एतमाद पर मुबनी इस ताल्लुक को मज़ीद मुस्तहकिम करेगा। ईरानी काउंसल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी और डायरेक्टर जनरल खाना फरहंग ईरान लाहौर जाफर उनास ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा किया। मुख्तलिफ शोबाजात देखे और ब्रीफिंग ली। काउंसल जनरल ईरान मोहम्मद रजा नाजरी और DG खाना फरहंग ईरान लाहौर जाफर उनास ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबाजात में गए। मोहम्मद रजा नाजरी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के असाई न्यूज़ रूम का भी दौरा किया। स्टाफ से मुलाकात की। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम बुखारी, डायरेक्टर न्यूज़ 24 मियां ताहिर, ग्रुप एडिटर सिटी 42 नबी चौधरी और डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 खुरम कलीम, कंट्रोलर न्यूज़ रोही और सिटी 41 हमीद नकीबी ने काउंसल जनरल को मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से ब्रीफिंग दी। मोहम्मद रजा नाजरी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के न्यूज़ रूम और काम करने के सहाफ़ती अंदाज को बेहद सराहा।
फ्रांसीसी सफ़ीर मार्क बेस्टे की गुलबर्ग आमद हुई। फ्रांसीसी सफ़ीर ने इंग्लिश टी हाउस में खाना खाया। पाकिस्तान में तैनात फ्रांसीसी सफ़ीर मार्क बेस्टे गुलबर्ग के टी हाउस आए। उन्होंने यहां इंग्लिश टी हाउस में खाना खाया और इस मौका पर उनके हमरा दीगर साथी और अमन के अरकान भी मौजूद थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन लाहौर के चेयरमैन मलिक जहांगीर हुसैन बारा की ज़ेर सदारत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इजलास हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल सुने गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा इजलास की सदारत मलिक जहांगीर हुसैन बारा ने की। इजलास में महकमा पुलिस, महकमा रेवेन्यू और मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 19 केसेस सुने गए, जिसमें कुछ केसेस को मौके पर हल कर दिया गया, जबकि 5 केसेस में जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बाकी केसेस मुतल्लिका इदारों के सपुर्द कर दिए गए और अगले इजलास में रिपोर्ट तलब कर ली गई। बेहतरीन कैब सर्विस माई लिफ्ट जिंदा दिलों के शहर में पहुंच गई। सर्विस का आगाज आज से होगा। लाहौरिया माई लिफ्ट कैब की ऐप धड़ाधड़ डाउनलोड करने लगे। इस इनकलाबी सर्विस में पैगार का झंझट नहीं होगा। रात और दिन के औकात में सफ़र का बिल यकसा होगा। कैब सर्विस इंतजामिया का कहना है कि माई लिफ्ट में कैप्टन हर राइड पर 85% आमदन कमा सकेंगे। शहरी अभी ऐप डाउनलोड करके अपनी राइड से लुत्फानंदोज हों। खताती मुसलमानों का तहसीबी और सकाफती विरसा है। जदीद टेक्नोलॉजी की रोशनियों में ये फ़न भी गुम होता दिखाई दे रहा है। खताती का फन इल्म से ज्यादा अकीदत का तकाजा करता है। यही वजह है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद खताती के दिलदादा अफराद की कमी नहीं। मोहम्मद आसिम उर्दू और अरबी खत कैनवस पर उतारने में महारत रखते हैं। वो खताती के असरार और मुँह से बाखूबी वाकिफ हैं और नौजवान नस्ल को ये फन मुंतकिल कर रहे हैं। मेरा शौक है, मैं कोशिश है कि मेरा पाकिस्तान में ना ये चीज़ जारी रहे, क्योंकि लड़के अब जो है ना इस फील्ड में नहीं आ रहे। अब हाथ का जो काम होता है, एक तो वो पायदार होता है, अब फास्ट हो गया, मॉडर्न दौर आ गया है। खताती में दिलचस्पी लेने वाले मानते हैं कि इसकी गहराई में उतरे बगैर महारत नहीं हासिल की जा सकती। हमारा दौर था जब कलम दुआ चलती थी, लिखने का भी शौक था, पढ़ने का भी शौक था। अब तालीम का फुकदान है। इस पेशे के हवाले से या शौक के हवाले से कोई भी इधर नहीं आता। मोहम्मद आसिम का शिकवा है कि इस फन को जो अहमियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हुकूमती सतह पर इस फन की हौसला अफजाई होनी चाहिए। खताती और कैलीग्राफी की तारीख सदियों पुरानी है। दौरे हाजिर में बहुत से फनकार पहचान ना मिलने की वजह से नाला नजर आते हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। यूनाइटेड मोटर्स की अल्फा कार शहर की सड़कों पर फराटे भरने लगी। डीएचए में शहरियों ने अल्फा की टेस्ट ड्राइव की और इसके फीचर्स को भी सराहा। डीएचए में भी शहरी यूनाइटेड मोटर्स की अल्फा कार के गुन गाने लगे। अल्फा कार टेस्ट ड्राइव के लिए पेश की गई तो बड़ी तादाद में शहरियों ने ड्राइव का लुत्फ उठाया। बड़े अच्छे व्यूज़ हैं इस बारे में। हैचबैक गाड़ी है, 1395 में मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मुनासिब जो है ये ऑफ़र की जा रही है, क्योंकि अगर हम हैचबैक गाड़ियाँ देखें तो उनकी क्या क्या प्राइसेस चल रही हैं। और दूसरी बात यह कि इनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। गाड़ी तो बहुत अच्छी लगी है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये लॉन्च हुई है और वैगनार से ये बहुत अच्छी है। इसमें 4 सिलेंडर है, मैं हैरान हूँ ये देख के 4 सिलेंडर है। अल्फा कार में यूरो 4 इंजन दिया गया है। इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एलॉय व्हील जैसे फीचर्स मौजूद हैं। डीलर्स के मुताबिक शहरियों की जानिब से जबरदस्त रिस्पांस सामने आया है। ये वाहिद गाड़ी है जो 4 सिलेंडर हमने 1000 सीसी जमा कराई लॉन्च की है। 16 मॉडल DOHC इंजन है इसका। मेंटेनेंस फ्री बैटरी है इसकी। सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, पावर डोर। इस प्रोडक्ट को आप लोकल है, गाड़ी हमारी यहीं पे तैयार हो रही है, लोकल असेंबल्ड है, पाकिस्तान में इसका प्लांट लगा हुआ है और मैं चाहूँगा कि लोग डीलरशिप पे विजिट करें और इसको खुद एक्सपीरियंस करें। शहरियों को अल्फा कार भा गई है जो 1000 सीसी कैटेगरी में कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स की हामिल है। यूनाइटेड मोटर्स की अल्फा 1000 सीसी कार बाकमाल फीचर्स के साथ कम प्राइस में दस्तयाब है, जिसकी वजह से शहरियों का रुझान इस गाड़ी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ अनाशिया पाशा, सिटी 42। खेल के मैदान का रुख करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने का आज़म एथलीट अरशद नदीम की मेगा इवेंट के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। कहते हैं दस्तयाब वसाइल में भरपूर तैयारी कर रहे हैं, कौम को मायूस नहीं करेंगे।
ओलंपिक्स में 31 बरस बाद मेडल जीतने का मिशन। एथलीट अरशद नदीम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अरशद नदीम अपने कोच फयाज बुखारी की जेर निगरानी पंजाब स्टेडियम में 2 सेशंस में ट्रेनिंग करते हैं। अरशद नदीम लॉन्ग रनिंग के साथ साथ बॉल थ्रो कर रहे हैं। उन्होंने 88 मीटर थ्रो के साथ अपना साबका रिकॉर्ड बेहतर किया है। अरशद नदीम कहते हैं ओलंपिक्स में सिर्फ हिस्सा नहीं लेना, मेडल भी जीतना है। ओलंपिक्स का हमारा टारगेट है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी पाकिस्तान कौम से यही कहूँगा कि मेरे लिए खुसूसी दुआ करें ताकि मैं ओलंपिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेडल लेकर आऊँ। अरशद नदीम का कहना है कि सदर एथलेटिक्स फेडरेशन अकरम शाही की कोशिशों से वो ओलंपिक्स की तैयारी के काबिल हुए हैं। बेहतर नताइज के लिए हुकूमत को एथलीट्स की सरपरस्ती करना होगी। साउथ एशियन गेम्स में 86.29 मीटर थ्रो करने वाले अरशद नदीम पुरअज़्म है कि 31 बरस बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स मेडल जीत कर लाएंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।